Rajkumar sir and Dr. Alu Kumar sir to please come for the lighting of the lamp. I request the HODs and Mr. Rishi Srivastava sir also. Dr. Madanish sir, Pallavi ma'am, and Divya also. Shanti, Shanti, Shanti. Now I request everyone to please stand for the national anthem. I request Chanchana ma'am in my university Jharkhand. Thank you, Elisa ma'am, and good morning, everyone. Now I would like to request Professor Dr. J.B. Patnaik sir, Registrar ICFAI Jharkhand University, ICFAI University Jharkhand, to kindly deliver the welcome address. Please, sir. Thank you, Dr. Chancellor. Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Raman Kumar Jha sir, guest of the day, Father sir, respected Dean sir, Shobna madam, Alok sir, Rajkumar sir, dignitaries on the dais and off the dais present in three different theaters of our university, all other professors, associate professor and assistant professors are present, your students and parents.
At the outset, it's my great pleasure to welcome you all to ICFI University, Jharkhand. I wish to congratulate each of you first on having secured your university place, and second for having a good sense of choose to study in ICFI University, Jharkhand. Before I start, I usually worship the Almighty to remove all obstacles and get success in every task. I will go for 2 slokas today. Considering the different religions, Hindu, Christians, both Jain, Muslims, etc. As a Hindu mythological sloka, we usually start the day worshipping Lord Vishnu. Shantakaram, Bhujagashayanam, Padmanabham, Suresham, Vishwadaram, Gaganashadrisham, Meghavarnam, Subhangam, Lakshmikantam, Kamalanayanam, Yogi Vidyanadha Gamyam, Vande Vishnu, Bhavavaya Haram, Sarve Lokikyanatha, Sarve Lokikyanatha. This we worship the Almighty to remove all the obstacles and get success in every task. And to start with the day, I usually worship Brahma Murari Tripurantakari Bhanu Shashi Bhumi Shata Guru Buddhascha Shukrascha Samiram Ketava Kurvantu Sarve Mama Suprata. Now, Brahma Murari Tripurantakari, Lord Brahma, the creator of this universe. According to Hindu mythology, the Brahma, Lord Brahma, Sadhananda, he is sitting in the Kamal, the lotus flower, which has come from Lord Vishnu, वो सर्जन करता है. उनको हम पहले we worship him, then Almighty Lord Vishnu, who is in deep sea and nourishing to all the creations made by Brahma. So also Bhagavan Shankar, Tripurantaka. Bhagavan Shankar is considered as the God to remove all the sorrows, miseries, and give light to all the people who is being nourished by Lord Vishnu. We have 9 grahas. The grahas are Surya, Chandrama, Mangal, Guru, Buddha, Shukra, Shani, Rahu, and Ketu. We always start our days by chanting. I usually start the day by chanting this. Now, it comes to mind, in this universe, in this art, who can be these 3, combination of 3, like Brahma, Murari, and Tripurantakari, Lord Brahma, Lord Vishnu, and Shankar Bhagavan, who are the one who is integrated? Can anybody say? That is Guru. We say Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakhat Param Brahma, Tasmai Shri Guru Deva. So, one person who is in the universe is called Guru. Why we require Guru? Because all these 3 things that we learned, these 3 are with the Gurus.
the one who can show you the path. गुरु क्यों चाहिए? Why you need गुरु? गुरु इसलिए चाहिए कि वो ज्ञान प्रदान करे और वो ज्ञान विद्या प्रदान करे जो कि आपको मोक्ष दे। सा विद्या जा विमुक्ते। विद्या ऐसा है जो कि आपको मुक्ति प्रदान करता है। सो टू गेट द नॉलेज you require the guru. It is always said that सोए हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं नहीं आता। आता है क्या? उसके लिए शेर को परिश्रम करना पड़ता है। शेर जब शिकार करता है तो वो सारे अपना परिवार को देता है, पर जब छोटा शेर वो शिकार के लिए जाता है वो किसके साथ जाता है? He is learning the art of getting career from his parents. The parents are the first guru that they give the knowledge. So also in this university system, why people have joined? All people are from UG and PG. Why you have joined with ICFI University, Jharkhand? That comes to mind of every student that why I am joining, what is the aim, and how we will achieve our success in due course of time. Achieving any task requires diligent effort, not slowly contemplations. It requires a diligent effort. If you start working hard, definitely you will get the success. So how will you get the success? Your presence at the ICFI University is for knowledge and wisdom. It's present for the knowledge and wisdom. This is a challenge. This is a challenge to get the knowledge. How you acquire the knowledge? What for you acquire the knowledge? It's not that you will success by achieving 10 out of 10 in the examination. Everything is not dependent upon the performances in the examination. Our tagline, grooming professionals with values. Our tagline, ICFI University's tagline is grooming professionals with values. We groom the people who become professionals and we cater the values. What are the values? How you value? How you value your teacher? How you value your mother? How you value your father? How you value your students? How you value your peers? Now in the Indian cultural system, I value to my teacher by paying a namaskar or by giving a greet, touching the feet of the teacher, because we consider that them as the most valuable person in our life. But in a European system or any other system, the values to the teacher is different. This cultural things is passing from generation to generations, and that we too are passing from generation to generations. The values. So my dear students, this is a place where you can get the knowledge, as well as we have a holistic approach for giving you the values, your characters,
you must be capable enough to handle the situation at any time with an approach that will not give any sorts of problem to anybody. There are many challenges. You will feel many challenges in your life. Life is not easy. It is easy if you find that life is easy. Our vice chancellor is here. In the course of time, you will have a different interactions in different aspects. I request vice chancellor sir also to have a spiritual talk someday later with all these 500 people that are sitting in different places. So that is a great challenge for all of us how to get the success and have a character, good character. See, you must remember to work hard and earn every opportunity you want. Take every challenge you face on the opportunity for another chance to prove your worth. Also, know the difference between people to whom you have to prove yourself and those you don't have to. Always remember to have a sense of humor in the life. That is why we say grooming professionals with values. The students, there will be many different presentations as per the agenda. The Dean of the Student Welfare Office is responsible for promotion of and enhancement of student welfare and the discipline in the university. To deliver their service, we create and observe a variety of programs that include studies, social extracurricular activities, health, psychosocial supports, and student leadership. We request you to take the advantages of all the academics as well as other activities. For this, you can discuss at any time with the officials of the university. My dear friends, colleagues, students, life is truly special, and with patience and hard work, you will certainly make responsible decisions for yourself, your family, for your country as well. Take accountability of your failures and learn from them. Don't let anything bring you down. Stay as passionate and driven as you are today. Keep achieving and reach great heights with flying colors. We will be proud if our alumni will hold the topmost position of anywhere he or she works. That will be a proud moment for all the teachers, those who are present here, and there should be an interaction between the teacher and students. Lastly, for the students, I have a punchline. Every people know that हम होंगे कामयाब. हम होंगे कामयाब एक दिन. Somebody can sing that? No? Nobody is here? The students? So let us sing with me. At least if you are not able to sing, you can start singing with me. हम होंगे कामयाब. नहीं? हम होंगे कामयाब एक दिन. गुड. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन. So this is the punchline for all of us that we will work hard and definitely we will achieve the pinnacles of this success. So again, I welcome you all to District 5 University. I look forward to meeting you till, and I hope you all have a great year ahead. Thank you very much. Thank you, sir, for this spiritual words and welcome for today's meeting.
Now, I would like to request our dignitaries to felicitate our guest, Mohammad Mathum Haider sir. Okay. Now, I would like to request Honorable Professor Dr. Raman Kumar Jha sir, Vice Chancellor, ICFA University, Jharkhand, to please brief us about ICFA Society and its legacy. Please, sir. Thank you very much, Dr. Chanchla and Dr. Sakra. And I welcome everyone on the dais, Registrar Sir, the guest of the honor today from CPET, who would speak on how we have tied up with them and what opportunities lies ahead. The deans, the assistant deans on the dais, who will be the lamppost and guiding sources for all of you. Should I continue in English? Yeah, Hindi people. Mix. कुछ पेरेंट्स हो सकते हैं शायद अंग्रेजी ना समझ पाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में ही अपनी बातें रखूं। बातों में कुछ रखा नहीं है, लेकिन बातों में ही सब कुछ रखा। बातों बातों में हम उस जगह करेंगे जहां के आप दुनिया से बात करेंगे। मैं आपको वहां ले जाने की कोशिश करता हूं। इक्फा यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हमारे नए बच्चों का और उनके साथ बैठे हुए उनके अभिभावकों का तहे दिल से इक्फा की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आपका यहाँ आना आपका चॉइस हो सकता है, लेकिन आपको बनाना, संवारना, राह दिखाना, मंजिल तक पहुंचाना हमारा चॉइस। आपका एक ही काम है, उस रास्ते पर चलना। फिर मैंने जो पहले कहा, बातों बातों में आप वहां पहुंचेंगे जहां दुनिया आपसे बात कर रही है। हमें ये चाहिए, हाँ या ना चाहिए। जैसा सर ने कहा हम होंगे कामयाब, तो ये जरूर कामयाब होंगे। सवाल ये है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, स्कूल में पढ़े, जहां से आप पढ़ के आए हैं, वहां एक लेवल तक आपको पढ़ाया गया। अब यहाँ थोड़ा सा दर्जा ऊपर उठ रहा है। नेचुरली जब हम पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं तो आप जैसे जैसे ऊपर आए जाना चाहेंगे तो कठिनाइयां बढ़ती रहती। तो उस कठिनाइयों से जूझने के लिए, उसको पकड़ने के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। और हमारे सामने बैठे सभी शिक्षकगण, मैं खुद भी आप सबों को पीछे से भी सहारा दूंगा, आगे से भी खींचूंगा, कभी कभी मारूंगा, कभी कभी डांटूंगा। कार्य कर रहे हैं 100 ग्राम के कारण हमारी बेटी शायद गोल्ड मेडल लेके आती है, होता है। तो 100 ग्राम की गलती कितनी महंगी पड़ती है।
आपको पता है न्यूज, तनिक भी आपको मौका नहीं है कि आप गलती कर जाए। और हम कभी कभी जिंदगी को दांव में लगा के छोड़ देते हैं। सर आप जो पढ़ाइए मैं तो नहीं पूछूंगा, पहले इंग्लिश जवाब लिख दूंगा और मुझे आप डिग्री दे दीजिएगा। इतनी भी डिग्री ले लो आप, ओलंपिक में क्या होगा फिर? दुनिया में क्या होगा फिर? आपके बच्चों का क्या होगा फिर? आज आप बच्चे हो सकते हैं। चलो बच्चों पर बात आई तो मुझे कल का न्यूज याद आ गया, शेयर कर देता हूँ। आज मैं इतना प्राउड फादर हूँ, इतना गर्वान्वित फील कर रहा हूँ कि मेरी बेटी को 3.2 करोड़ पर मंथ का पैकेज कल मिला है। उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अब्दुल को ज्वाइन किया। कल तक वो सर्च कर रही थी, परसों तक भी। परसों रात के 11 बजे मैं हैदराबाद में था, वहां ये न्यूज आया। इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। मैं चाहूंगा कि जितने अभिभावक पिता माता यहाँ बैठे हैं, सब में ये गर्व हो कि हमारा बच्चा IFI में पढ़ने के बाद ना हो 3 करोड़, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम 3 करोड़ के लायक तो पहले बने। पहला कदम वो है। हम अनफॉर्चुनेटली 3 करोड़ को ही देखते रह जाते हैं, शून्य गिनते रह जाते हैं। कितना शून्य? छोड़ दीजिए, हम 2-3 बातों को ध्यान रखेंगे और वो सारे शून्य अपने आप कोई और ऐड करेगा। अब तो हमने नहीं बनाया था, बिटिया को भी हमने नहीं बनाया था, तो किसका ग्रेस है, किसका आशीर्वाद है? ईश्वर का आशीर्वाद। आप जिसको जिस नाम से जानते हो, अल्लाह, अकबर, चाहे जो भी हो, उसका जब तक आशीष नहीं है, उसके जब तक आशीर्वाद नहीं है, उसकी कृपा नहीं है, तो शायद वे वो नहीं करता। मेहनत लेगी अपनी। मैं 3 बातों से शुरू करना चाहता हूँ। पहला, फर्स्टली मैंने वेलकम किया है आपको, और ये वेलकम शायद कभी खत्म नहीं होगा। जो एक बार IFI में आ जाता है वो जिंदगी भर के लिए वेलकम रहता है। यहाँ से आप चले भी जाएंगे फिर भी यू वेलकम ऑल द टाइम, राइट? मैं हमेशा चाहूंगा आपकी आइडेंटिटी IFI के साथ रहे और IFI की आइडेंटिटी आपके साथ। आप अच्छा करेंगे तो IFI अच्छा करेगा। कोई प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, डीन अच्छा नहीं होता जब तक उसका स्टूडेंट अच्छा नहीं होता। कोई बाप भी अच्छा शायद नहीं होता जब तक उसके बच्चे अच्छे नहीं होते। तो ये फाइट, ये स्ट्रगल, ये शिक्षा, ये ये हुनर, ये प्रतिज्ञा, ये राह का चुनने का आपका डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट। पूरी दुनिया आपके कदमों पे आ सकती है यदि आप ठीक से खड़े हैं। खड़े क्यों ना हो? सारी चीज तो भगवान ने दे रखी है। पैर उनका है, हाथ उनका है, आंख उनका है, सोच उनकी है। अभी अभी ब्रेन में कुछ हो जाएगा, वो दूसरे पल में हम नहीं। तो ये किसका है? सब उन्हीं का है। ये समर्पण का भाव रख लेंगे तो फिर अपने आप को हम खिला सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा एक वृक्ष की तरह। एक वृक्ष को जब आप देखते हो तो क्या देखते हो? पत्ते देखते हो या फल देखते हो, टहनी देखते हो, तना देखते हो, क्या देखते हो? हम लोग फल ही देखते हो। फल मिल जाए तो बस हो गया, वृक्ष से जाए। लेकिन जो चीज नहीं दिखता है वही वो फल भी देता है, वही उस पेड़ को खड़ा भी रखा हुआ है, वही उस पेड़ की तना भी बना रहा है और ब्रांचेस भी बना रहा है और अंत में फल भी बना रहा है। वो क्या है? जड़। पानी कहाँ देते हैं, फल पे या जड़ में? मैं वही पानी लेके आ रहा हूँ। ये आपके जड़ में इतना पानी जाना चाहिए, इतना हाथ जाना चाहिए कि फल कोई और खाए। कोई पेड़ अपना फल नहीं खाता, पता है? कोई पेड़ अपना फल नहीं खाता। कोई माता पिता अपने बच्चों से पैसे नहीं लेना चाहता। क्या चाहता है? हमसे अच्छा बनो। और ये हमारे संस्कार है, हमारा संस्कार है। बिहार और झारखंड का ये संस्कार है। मेरी पढ़ाई भी
अभी के झारखंड और उस समय के बिहार में ही हुए। सैनिक स्कूल तिलैया का पढ़ा हुआ हूँ मैं। मुझे आर्मी में जाना था, शाहरुख खान की तरह जैसे फौजी बना था वो, मुझे भी फौजी बनना था। मेरे सारे दोस्त फौजी थे, मैं फौज में गया नहीं। किसी ने कलम पकड़ा थी, क्योंकि पिताजी भी कलम पकड़ के टीचर थे, दादाजी भी थे, तो ये रास्ता बड़ा अच्छा लगा। और अब ये मौका मिलता है कि इतने लोगों को शायद वो चीज हम दें। क्या दें? मैं 4 शब्द लेके आया अभी। किसी भी काम को करने के लिए चार चार चीज होता है। एक, उससे रिलेटेड शास्त्र होते हैं, बहुत कुछ लिखे हुए होते हैं, किताबें होती हैं। पहला क्या है? शास्त्र। शास्त्र को क्या किया जा सकता है? शास्त्र को समझाया जा सकता है या समझा जा सकता है। आपने किया है शास्त्र को कुछ? क्या किया जा सकता है? शास्त्र को समझाया जा सकता है या फिर समझा जा सकता है। तंत्र दूसरा शब्द है। तंत्र क्या है? स्किल। शास्त्र क्या है? स्क्रिप्चर्स। तंत्र है स्किल। स्किल को क्या किया जा सकता है? सीखा जा सकता है। वो भी अपना नहीं, शास्त्र भी अपना नहीं था। उसके बाद आता है शिक्षा। शिक्षा को किया जा सकता है, शिक्षा दिया जाता है, और इसीलिए गुरु की महत्ता होती है। शिक्षा देने की चीज है, फिर तो लेने की कुछ है नहीं। शास्त्र समझा जा सकता है, तंत्र सीखा जा सकता है, शिक्षा दी जाती है। फिर एक चीज बचा क्या फिर सर? इसके बाद क्या है फिर? इसके बाद एक चीज है, वो है कला, वो हुनर, वो आपके अंदर है। इस 4 चीज को यदि आप पकड़ के नोट कर लो, शास्त्र को पूरा पढ़ना है। मतलब शास्त्र मतलब केवल स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स नहीं कह रहे, स्पिरिचुअल नहीं, धार्मिक ग्रंथ की बात नहीं कर रहे। आपकी किताबें, टेक्नोलॉजी, एआई, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इमेज प्रोसेसिंग, मैं टेक्नोलॉजी की बातें कर दी। उधर दूसरी तरफ जाइए तो मैनेजमेंट में जितनी चीजें आजकल आ रही, क्या क्या आ रही है? फुल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, including the use of ICT technology। ठीक है? कला एक ऐसी चीज है जो आप जन्म के साथ लेकर आते हैं, जिसको हम संस्कार भी कभी कभी कहते हैं। अपने संस्कार को पहचानना ही हमारी भूल हो जाती, नहीं पहचान पाते। मैंने कहा ना, मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा, मुझे बंदूक चलाना सिखाया गया। संस्कार के अंदर में क्या रहता? ना ना, किसी को मारूंगा नहीं, किसी को बनाऊंगा। अंदर की आवाज थी, उस अंदर की आवाज को आपको पहचानना है, पहचानना है। और पहचानते हैं सभी लोग अपने अपने अंदर की आवाज को। मैं पेरेंट्स को नहीं बोल रहा हूँ, बच्चों को बोल रहा हूँ। पेरेंट्स ने कुछ न कुछ तो पहचाना है, तब आप यहाँ आए, उन्होंने आपको सपोर्ट दिया है तो इतना तक पहुंचे आप। अभी आपको फल देना है, आपका वृक्षारोपण हो चुका है। ठीक है? आपका जड़ मजबूत एक तरफ तक हुआ है, कुछ और पानी खाद अब मिलेगा तो और मजबूत होगा, ताकि आपके फल अच्छे मिले। आई होप कि मैं आपको ये बातें समझा पाऊं। जिस 4 शब्द को भूलना नहीं है। आपको करना फिर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी तो मिल गई, पेरेंट्स भी मिल गए, पढ़ भी लिया, कॉलेज में भी आ गया, डिग्री भी मिल जाएगी, एग्जाम भी पास कर लिया, फिर करना क्या है? आप क्या तो नहीं सब प्लेसमेंट दे देना, आप मैं ले लूंगा। सैनिक स्कूल दिल्ली में कहा गया था आपका, तो आपको तो एनडीए जाना है, मैं तो गया नहीं, तो क्या हुआ फिर? सारा शिक्षा बेकार हो गया? नहीं, कोई भी शिक्षा बेकार नहीं जाती। जिस गुरु ने आपको जो शिक्षा दी है उसको पकड़ के रखना है, शास्त्र को पढ़ के रखना है, तंत्र को सीख के रखना है, फिर कला का अपने आप संस्कार बढ़ता जाएगा। आपके अंदर एक ऐसी चीज है जिसको हम कहते हैं पैशन, अंग्रेजी में। आपका अपना टाओ, उसको चाइनीज वर्ड में टाओ कहते हैं। ये आपका सेल्फ इंटेंट क्या है, आपके अंदर का बेसिक हुनर क्या है, क्या उसको पहचानते हैं? वो है पैशन।
यदि आपने अपना पैशन पहचान लिया तो आपका रास्ता बहुत कुछ आपको दिखने लग जाएगा इस पैशन के लिए। मान लीजिए कि आज मेरे रूप में अभी अभी किताब आई है, बांसुरी बजाने की कला है उसमें सिखाने, और वो सेल्फ टॉट बुक है। मतलब कोई भी किसी ने लिखा है कि मैंने कैसे बांसुरी सीखा, और मैं उसको यदि पढ़ लूं हो सकता है मैं भी सीख जाऊं। ये तो है, इतना ही है। किसी भी एरिया में नॉलेज की अभी कमी नहीं है, और फ्रीली भी अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें तो फ्रीली अवेलेबल है। और इसलिए हमारे टीचर्स का टास्क बहुत बढ़ जाता है कि अब आपको हम वो चीज दें जो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। अभी जो मैं दे रहा हूं ये आपको शायद मेरे मुंह से मिले, दूसरे से कुछ और मिलेगा, लेकिन यही असल चीज है। यदि आपने अपने आप को पहचान लिया, अपना पैशन पहचान लिया, दूसरा वर्ड यूज कर रहा हूं इमेजिनेशन, सोचने को कि वो एक्सप्लोरेशन का एक्सपेंशन, कितनी दूर तक आप सोच सकते हैं, कितनी मंजिल का घर बनाना चाहते हैं, कितना ऊंचा पहुंचना चाहते हैं। पहले इच्छा, इच्छा क्या है, उसके लिए मरना नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन तो करना है, तभी आप एक्सप्लोर करोगे। यदि हम इमेजिनेशन नहीं करें कि हम सबसे अच्छा बनना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, कोई बता दे कि ये मुक्ति धाम है तो मुक्त हो जाना चाहते हैं, मुक्त हो गए, फिर आना पड़ेगा, यही हमारा शास्त्र कहता है। तो कितनी भी मुक्ति मिल जाए, कितना भी मौत भी आ जाए, चाहे आप कुछ भी कर लो, असल में क्या है, ये जो एक्सप्लोरेशन है, ये जो इमेजिनेशन है, ये कितना बड़ा होना चाहिए। हम सभी को इनलाइटेंड, हाईएस्ट लेवल ऑफ इनलाइटनमेंट होना चाहिए। यस, क्या आप कहते हैं नहीं मेरा थोड़ा आधा ही पेट खाली रहेगा तो ठीक है, चल रहा है, तो स्वाद नहीं भी मिलता है तो भी खा लेते, हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है तो भी खा लेते हैं, ऐसा करते हैं ना हम लोग। आइसक्रीम के ऊपर आइसक्रीम खा लेते हैं तो 2 दिन बाद फिर और भी कुछ खा लेते हैं, या टेक कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। इमेजिनेशन, एक्सप्लोरेशन, उस डायरेक्शन में जो आपका पैशन है, ठीक है। और तीसरा है, जब आपने पैशन डिसाइड कर लिया, एक्सप्लोरेशन भी इनफाइनाइटली कर लिया, या हाईएस्ट लेवल क्या अटेन करना चाहते हैं वो सोच लिया, देख लिया, कम से कम सपना देख लिया, तो नेक्स्ट है कमिट करना। उसको पाने के लिए फिर जो करना है सब करना है। गुरु आपके सामने खड़ा है, चारों तरफ गुरु है, मैं ही एक नहीं, हजारों गुरु खड़े हैं। यूट्यूब भी आज गुरु है या नहीं? सबसे अच्छा है, ज्यादातर मोबाइल में आ जाता है, जब बोलो तब आ जाता है। थोड़ा सा इंटरनेट पैसा लेता है रिलायंस जियो, वो भी कहता है जियो, है ना। तो 3 वर्ड, पैशन, इमेजिनेशन और कमिटमेंट। हम कहते हैं इसको पिक, PIC। अपना पिक्चर वही है, ये कौन बनाएगा, आपको खुद बनाना है, तब कामयाब। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत, नहीं आ रहा है तो कोई बात। एक बड़ी खराब चीज मैं बता रहा हूं आपको, आप सबको कहा गया होगा कि सबकी मदद किया करो, दूसरों के दुख में दुखी हो जाओ, ये धर्म कहता है। मैं आपको आज कह रहा हूं, आप बिल्कुल सेल्फिश हो जाओ। पर आपके क्या सिखा रहे हैं, सेल्फिश होना अच्छा है खराब है? जब तक आपका ऑक्सीजन इंश्योर नहीं है, दूसरों को ऑक्सीजन आप नहीं दे सकते। आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो दूसरों को पैसा नहीं दे सकते। तो सेल्फिश होना पहले इंपॉर्टेंट है। अपने खेत में पहले हरियाली लाने की जरूरत है, तब लोगों के खेत को देख लेना। जो अपना खेत है वो क्या है, ये जो हड्डी है इसके अंदर सब कुछ है। इस खेत को इतना हरियाली लाओ, इतनी अच्छी अच्छी चीजें भर दो, कोई फर्क आएगा नहीं। नॉट अलाउड, ये डिसाइड करो किसको अलाउ करोगे तुम अंदर आने के लिए और किसको नहीं अलाउ करोगे। बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, दिखते हैं, होते हैं या नहीं ये पता नहीं। आपके दोस्त बगल वाले बड़े अच्छे दिखेंगे, हो सकता है आप स्मार्टली ड्रेस्ड हो, आपसे अच्छे से बातें भी करें, और सारे आपके नोट्स भी ले जाए, पैसे भी कैंटीन में आप ही से खर्च करवाएं, और आप बोलोगे ठीक है मैं थोड़ा अपना फ्रेंड के लिए कर रहा हूं। नो, दिस इज नॉट द टाइम। स्टूडेंट्स प्लीज,
Make your life so capable, so I would say all-rounded कि कोई भी तरह का तकलीफ हो तो आपको तकलीफ ना हो। तकलीफें नहीं होंगी तब तो फिर खत्म ही है, जिंदगी की जरूरत ही नहीं। जिंदगी की जरूरत है, लेकिन तकलीफों को सॉल्व करने के टेक्निक को, कोई तंत्र को सीख कर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये मंत्र है। तो आपको सेल्फिश होना है। अब इसको एक बड़ी ही डिफरेंट वे में हमारे प्रिंसिपल कहा करते थे, और लास्ट टाइम भी मैंने इसको रिपीट किया था और मैं रिपीट करना चाहता हूँ। अगेन एक मंत्र बता रहा हूं मैं। सर ने संस्कृत में मंत्र बताया, मैं इंग्लिश और हिंदी में बता रहा हूं, बात एक ही है। कुछ चीजें मैं कह रहा हूं जो आपको करना है, राइट चीज करना है। ऑलवेज डू द राइट थिंग। 50% ऑफ चीज आपका खत्म हो जाएगा। Always do the right thing when at the right time, in the right manner, and with the right spirit. Can you remember how many rights I said? 4. Always do right things. पहला बात, right things, right time. आप कहोगे सुबह उठ के हम राग भैरवी शुरू करते हैं या जो भी हो, मलखन शुरू करते हैं, अलग अलग राग होता है, जो भी है, जो म्यूजिक वाले वो जानते हैं किस समय में कौन सा राग गाया जाता है, उसका समय होता है। ठीक है, बोलते समय अभी हम ये नहीं बोल के कुछ और बोलने लग जाएं, फिर आपको लगेगा कि ये आदमी थोड़ा किसका होगा, किसका नहीं। ऑलवेज डू द राइट थिंग, मतलब सही चीज करना है, सही समय पर करना है, सही तरीके से करना है, और सही हृदय से करना है। ये सब हृदय का सबसे बड़ी चीज है। और उसमें फिर आप दयालु भी बन जाओगे, फ्रेंड्स को हेल्प भी करोगे। अपना हार्म नहीं करना है, सेल्फिश इसलिए बोला। आप लोग क्या कर लेते हो, या हम लोग सभी कर लेते हैं, दूसरों के दुख में ज्यादा दुखी होते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं। और अधिकतर लोग कहते हैं सर मैं दुखी लोगों का साथ दे रहा हूं, मेरे पास मेरा ईगो सेटिस्फाई हो गया। पहले खुद अपने दुख को सॉल्व कर लो। Am I making sense? समझ आ रही बात है? गुड। अब इक्फाई कहते हैं, इक्फाई एक यूनिवर्सिटी है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, तो अलग है। कुछ चीजें जो मैं नोट करके लाया और आपको बता रहा हूं। पहली बात है जो आपको मैं सिखाऊंगा और सिखाता रहूंगा, जब आप अपनी क्लास में मुझे बुलाना चाहो बुला लेना। मैं सबसे छोटा आदमी हूं यहाँ का, हाइट भी दिखी रहे, ठीक है। और सबसे पहले कमरे में बैठता हूँ जहां घुसोगे कि मैं दिखूंगा, ठीक है। जब चाहो बुला लेना। आपको कंपटीशन भी इससे करना है सबसे ज्यादा, किसे? खुद से। एक्सीलेंट, हो गया सेल्फिश। आप यही तो करना है। कल तक जो हम थे वो थे, आज हम क्या हैं वो इम्पोर्टेंट है, परसों क्या होंगे वो और इम्पोर्टेंट है। Every day if you are progressive, you are moving in the direction along with all the gurus, as per the direction of the gurus and the university. You are there. कोई भी आपको हिला नहीं सकता। आपके जड़ें इतनी मजबूत होनी चाहिए, हिलने लगे तो मैं, ठीक है। शाहरुख खान का सिनेमा भी है मैं हूं ना, ठीक है। कोई चिंता हो तो मैं हूं ना, ठीक है। चाहे किसी भी तरह की चिंता हो, पैसे मत मांगना बस, क्योंकि हम तो शिक्षक हैं। शिक्षक के पास पैसा कभी नहीं हुआ करता था, आज भी नहीं। आदर देते रहना बस। आदर दोगे तो यहाँ पर बहुत सारे फादर और मदर मिलेंगे, और नहीं तो हंटर वाले भी लोग मिलेंगे, मैं भी उनमें से एक। आदर देते रहना, शिक्षा लेते रहना, तंत्र सीखते रहना, शास्त्र समझते रहना, और कला को विकसित करते रहना। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप समझें। इक्फाई इज प्रोसेस ओरिएंटेड, it is not
आप आए तो कुछ और, वो आए तो कुछ और, प्रोसेस सबके लिए एक ही। वेरी इंपॉर्टेंट। काश की पूरी दुनिया प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाता तो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो नहीं होता, श्रीलंका में जो हो वो नहीं होता, अभी यूक्रेन में जो हो रहा था वो नहीं होता। सब क्या है, सेल्फ ओरिएंटेड है, सेल्फिश है, लेकिन बिजनेस के टर्म में सेल्फिश क्या है, हम गन बनाएंगे ताकि हमारा गन बिके, इसलिए लड़ाई करवा दो। ये गलत डायरेक्शन की शिक्षा है और ये वेस्टर्न वर्ल्ड की शिक्षा। तो वन, वी आर प्रोसेस ओरिएंटेड। सेकंड, वी आर लर्नर सेंट्रिक। हमारा सारा काम आपके ऊपर है, आप कितनी अच्छी लर्निंग कर सकते हो यहाँ, उसके ऊपर हम केंद्रित करेंगे सारा चीज। थर्ड, वी आर क्वालिटी कॉन्शियस। आपकी क्वालिटी यदि अच्छी नहीं हुई 4 साल के बाद, क्योंकि हर तरह के लोग यहाँ आते हैं, कोई गरीब परिवार से भी है, कोई अमीर परिवार से भी है, कोई ऐसा भी है जो पैसे नहीं भी दे सकता है, किसी तरह से पैसे पूरे हो रहे, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं कह रहा हूँ, मेरे को 100 रुपया पहले कभी पर मंथ नहीं मिलता था, आज मेरी बेटी 3 करोड़ पर मंथ कमा रही है। इससे बड़ा क्या चीज हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लो कि ये हो सकता है, आज इंपॉर्टेंट नहीं है, कल कहाँ रहेंगे वो इंपॉर्टेंट है, वो डिपेंड करेगा कि हम कर क्या रहे हैं। Am I making sense? So quality consciousness is very important. If you are qualified, if you are good quality education, you will thrive everywhere. Be it speaking, be it playing, be it even hitting anybody. यदि कोई आपको मारने आता है तो उससे पहले वो मर जाना चाहिए। हमें तो यही ट्रेनिंग मिली थी। मैं बता रहा हूँ, मैं खड़े खड़े किसी को भी मार सकता हूँ, जिंदगी से साफ हो जाएगा, इसलिए लड़ना मत मेरे से। कॉशन भी है। नेक्स्ट पॉइंट इज वी आर इंडस्ट्री ओरिएंटेड। बहुत सारी इंडस्ट्रीज को हम बुलाएंगे, अभी उतना नहीं आ रहा था जितना आना चाहिए था, अब प्रॉमिस हो गया। मैं कल परसों मैंने कहा हैदराबाद में था, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ये कह दिया आपको जो चीज चाहिए सब कुछ मिलेगा। हमने कहा हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक अच्छी सी बिल्डिंग चाहिए, जिसके लिए उन्होंने लैंड दे दिया। 2026 में हमारी क्लास वहां लगेगी। आज 2024 है जुलाई, 2026 में जुलाई में हमारी क्लासेस वहां लगने लगेगी। तो अगले 2 साल में हमारा कैंपस नया अच्छा बड़ा बन जाएगा। वेरी गुड न्यूज वन। उन्होंने कहा मांगो बेटा क्या मांगते हो, तो मैंने कहा दूसरी बात जो मांगता हूं, मुझे अच्छे शिक्षक चाहिए। शिक्षा तो शिक्षक ही देंगे, अकेला चना क्या कहते हैं, बाहर नहीं फोड़ सकते। ठीक है, मैं जो हूं, हम सभी अच्छे शिक्षक हैं और अच्छी सैलरी भी दें उनको, लेकिन एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि फीस भी ना बढ़े। मैंने कहा नहीं, फीस बढ़ाना पड़ेगा। अभी वो एग्री नहीं हुए, मुझे 2-4 ट्रिप और लगाना पड़ेगा, थोड़ा फीस बढ़ेगा, अच्छे टीचर आएंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपकी मंजिल अच्छी होगी, वो रिटर्न हो जाता है। जितना इन्वेस्टमेंट आप करोगे एजुकेशन पर, अपने आप पे, वो सारा रिटर्नेबल बेसिस पर, क्योंकि वो साइकिल है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रिटी, मतलब ऑनेस्टी जिसको कहते हैं नॉर्मल वर्ड में। इंटीग्रिटी मतलब जिस चीज के लिए आपको रखा गया है या आपका जिस जगह पर जो काम है वही करना है। यहाँ पर अभी मुझे बोलना है तो मैं यहाँ फुटबॉल वाला किक तो नहीं मारूंगा ना। जिस चीज के लिए सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, मान लीजिए आप कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, करते हैं कॉल करते हैं, और कॉल की जगह वो कुछ और करने लगे, जंप करने लगे, आपको मारने लगे, क्या होगा? So it's not software with integrity. There is a whole section of software engineering where integrity of software is checked. टेस्टिंग होता है सॉफ्टवेयर का कि ये इंटीग्रिटी इसकी सही है कि नहीं, जो कह रहा हूँ वही सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 2x2 4 ही लिख रहा है या 8 लिख रहा है। ठीक है, सो जिस तरह से सॉफ्टवेयर काम करता है, हम भी अपनी इंटीग्रिटी को बर्बाद ना होने। पढ़ने आए हैं तो पढ़ेंगे, लैब करने आए तो लैब करेंगे,
नहीं हो पा रहा है तो टीचर के पास जाएंगे। टीचर एक है आपके पास फैकल्टी एडवाइजरों के साथ। आपके क्लास में एक टीचर है जिनको आपका एडवाइजर बनाएंगे। आप उनके पास कोई भी तकलीफ लेके जा सकते हैं कि आप, मेरा सॉक्स गंदा था, मैं बिना सॉक्स के आ गया, चले वहां तक मेरे पास ना था नेचुरली। तो एक फैकल्टी एडवाइजर है, कनेक्ट है, और वो आपके पेरेंट्स से भी टच में रहेंगे। पेरेंट्स भी चाहे तो उनको कॉल कर सकते हैं, अपना फोन नंबर दे, ईमेल दे, ताकि यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है या बच्चा आपका क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल इस उम्र में बच्चे कुछ भी करने को तैयार होते हैं। कहते हैं छोड़िए ना सर, ये भाषण तो कोई भी दे देता है, किताबों में लिखा हुआ है, आप भी बोल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। मैं किताबें नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं दिल से दिल जोड़ रहा हूँ। आपको आपकी हाईएस्ट लेवल की औकात है वहां पहुंचाने के लिए प्रेरणा मेरे पास है, ले जाना मेरा काम है, जिसके लिए मैं सैलरी लेता हूं। फ्री तो नहीं कर रहा कुछ भी काम, ये फ्री नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। नेक्स्ट, जो बात हम कह रहे हैं या जो बात आपके शिक्षक आपको बताते हैं, हर बार वही बात बताएंगे, ये ध्यान रखें। सुबह में कुछ और शाम को कुछ और नहीं हो जाना है, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। आई होप यू गेटिंग इट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन थिंग, और मे बी द लास्ट थिंग, आप सबको मैं बोलूंगा एक चीज, हैव वेरी बिग थिंकिंग। छोटा मत सोचो, सर आज खाना मिल जाए यही बहुत है, गरीब आदमी हूं, बोलो 10 गरीबों को खिलाऊंगा। आप गरीब हो ना, तो ये थॉट रखो, 10 गरीबों को आज खिलाऊंगा, आप देखो कहां से आता है। मैंने कहा था ईश्वर की कृपा होती है तभी जब आप तैयार होते उस पर ले लेंगे, वरना तो सूरज रोज निकलता है और हम 8 बजे सो के उठते हैं। यहाँ 9 बजे आने का मतलब होता है 9 बजे आना है, इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी, एवरीडे सेम चीज। घबराने नहीं है कि इतना ज्यादा डिसिप्लिन आर्मी वाला है, नहीं, आपके पास पूरा फ्रीडम भी है, क्योंकि एक्सप्लोर भी तो करना है, अपने आप को इमेजिन भी तो करना है कहाँ जाना है। लाइब्रेरी अवेलेबल है आपके पास, बुक्स अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, लैब्स अवेलेबल है, टीचर्स अवेलेबल है, ठीक है। और मैं और ये कहूंगा कि हमारे अपने मैनेजमेंट का आशीर्वाद भी अवेलेबल है, और वो जब अवेलेबल होता है तो कितने भी डाइवर्स सेट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंक्लूड करके एक टाइम का एजुकेशन यदि हम दे पाए आपको, तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा और आप सबों के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा। सो ICFA इज नथिंग बट प्लेटफॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल ऑफ यू, जिसमें आप अपने आप को जितना चाहें उतना ज्यादा शाइन कर सकते हैं। मैंने अपने बच्चों को भी यही पढ़ाई। आप सभी मेरे बच्चे हैं, मेरी उम्र 60 साल के करीब होने वाली है, ये मत समझना मैं भी बच्चा ही हूँ। कई बार लोग गलती कर जाते हैं, अरे सर तो छोटे मोटे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आप चाहोगे तो मैं हाईएस्ट लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी जेन AI का आया है, उसमें क्या हो रहा है उसकी बातें कर सकता हूँ टेक्नोलॉजी में। यदि चाहें स्पिरिचुअलिटी पर कि भाई रामायण का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन बाय डिफरेंट ऑथर्स क्या है, उसमें भी बातें कर सकता हूँ। बस मैं अपनी बातें नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ आप वो सब करने के कैपेबल हो जाओ, वो प्लेटफॉर्म ICFA आपको देना चाहती है। सो you come as learners, we remain as learners and viewers, as teachers, and when you go out as experts is my last line. You come as learners, remain learners for number of years that you have, utilize all the opportunities that you get here. जितनी चीजें हैं उस सब की पूरी यूटिलाइजेशन कीजिए, घर जाने की जल्दी मत कीजिए। विश्वविद्यालय को विश्व बनाए। हमारे यहाँ कुछ बच्चों की ये लड़की आदत, नहीं सर आज तो कोई और क्लास नहीं है, घर जा रहा, लाइब्रेरी है बाबू, और टीचर हैं जिनसे मिल सकते हो आप। एक और बड़ी अच्छी चीज याद आ गई, एक वर्ल्ड इनोवेशन लैब है हमारे पास, नेटवर्क
वर्ल्ड इनोवेशन नेटवर्क लैब है। उस लैब में जब टाइम ना मतलब कुछ फ्री रहे तो वहां चले जाएगा, सबका उसमें एक्सेस होगा। उसकी ट्रेनिंग भी प्लीज विल ऑर्गेनाइज अ ट्रेनिंग ऑन विन। ये विन का में क्या होता है, जितने भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज वर्ल्ड ओवर बेस्ट कंपनीज हैं, उनका डायरेक्ट ओपन प्रॉब्लम वहां दिया हुआ है। यदि आप में से कोई उनमें से कोई प्रॉब्लम को चुनता है तो कल को आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर सकते हैं। आपने सोल्यूशन दे दिया, हो सकता है वहां से फंडिंग 3 करोड़ की स्ट्रेट आ जाए। तो जादू है वहां, अपॉर्चुनिटीज है। करना किसको है? आपको। कोई बात नहीं, अभी नहीं कर सकते, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद करेंगे, उस डायरेक्शन में सोच बनाना शुरू करें। ठीक है, इट विल ऑटोमेटिकली कम। थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज you must devote yourself to the cause for which you're living. किस लिए जिंदा रहना है? झारखंड को अच्छा बनाना है पहले, कि अपने आप को अच्छा बनाना है? पहले अपने आप को, फिर फैमिली। एक नेक्स्ट लेवल जाएंगे, पेरेंट्स का सैटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जाएंगे समाज में, उसके बाद जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद जाएंगे स्टेट लेवल पे, फिर जाएंगे नेशनल लेवल पे, फिर जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे, फिर ग्लोबल। Let's hope that you complete all the journey in one life. My best wishes to you. Thank you, sir, for your motivational word. Now, as we know, we have official from CPET, that is Central Institute of Petrochemical Engineering and Technology, Ranchi, to address our students. So I would like to welcome sir to say a few words for our students. Please, sir. First of all, good morning. नमस्ते, जोहार आप सभी को, स्टूडेंट एंड सारे पेरेंट्स नंबर, एंड आल्सो I would like to thank working as an assistant. I did my journey as a personal coaching has been to manage my work and working for a in Chennai, in 1922, I was working in CPET Ranchi R&D lab. So just 1922 onwards, I was in Ranchi, CPET Ranchi. Why I'm sharing this to you? Because you're just seeing every 3 years I'm getting transferred to every center. My background is mechanical engineering, but I'm working in the CPET. CPET full form is Central Institute of Petrochemical Engineering and Technology. Commonly, it's known as a CPET, Central Institute of Plastic Engineering and Technology. The institute is a government institute fully devoted to plastic engineering field. But I'm in mechanical engineering, I'm working in there, and every year I will transfer. So just it is a hope, because you are the beginners. So always be ready with the positive mind, optimistic mind. Because while I was in Hajipur, I was learned only for the production activity, because CPET is doing multi activity with for the developing of tools, mold. So that was full dependent on my mechanical branch. And from Chennai R&D. So like you have seen, Make in India concept is going on. So in Chennai, in CPET, we have the 3D scanner, we have the 3D printer, all molding machine. So CPET Chennai is fully R&D lab, is working for the government organization, like we are working for DRDO, we are working for Ordnance Factory. Like Make in India, the government of India purchasing all weapons from the government, but they are giving to us a product, not a product, how to manufacture the product, how to manufacture the guns, yeah, how to manufacture the part. So in the reverse engineering field, there I was learned fully. We have the scanner. We just put the component in the front of the scanner. The scanner totally develop the software model to in computer.
From computer, we directly print the components same to same. Within the 24 hour, I can make duplicate copy of the component. So in this concept, we are working for there. Now this is Raji. I am a HOD for the design department as well as the skill development department. So this is my word for you. Ki always be ready for work and just optimize. But whatever the facility available, just to learn. Don't think if my field is this mechanical. I'm going to learn this field is plastic, because always if you are learning the things, it will be useful for you. Now always I'm giving lecture to industry because how to set up the plant, because nowadays you are just thinking कि from bottom of the shirt, आपके शर्ट के बटन से लेके घर में आप जो भी सामान यूज करते हैं वो हर एक चीज प्लास्टिक में दिया रही है। तो डेली टू डेली ये कन्वर्शन चल रहा है, तो अभी आपको हर एक चीज रिक्वायरमेंट, आपको हर एक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज आप इंजीनियरिंग कोई फील्ड, इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड आप जो भी यहाँ पे इंजीनियर फील्ड में जाने वाले हैं, फ्यूचर में बिकम इंजीनियर बनने वाले हैं, उनके पास एक इंजीनियरिंग का आप कोई भी फील्ड में हो, लेकिन अल्टीमेटली जब फील्ड में आएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, आपको मल्टी स्किलिंग इंजीनियरिंग होना पड़ेगा, तभी वो फील्ड में आप सर्वाइव कर पाएंगे और वर्क कर पाएंगे। तो आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। बिफोर स्टार्टिंग माय प्रेजेंटेशन आई वांट टू इंट्रोड्यूस अबाउट सीपेट। प्लीज स्टार्ट। CPET, Central Institute of Petrochemical Engineering. First slide. Next. It was established in 1968. The CPET is working under the Ministry of Chemical and Fertilizer, Department of Chemical and Petrochemical. The first center was established in 1968 in Chennai. From onward, we have started the journey from 1968. CPET is 9125 qualified ISO certified company, and also ISO IC 17025 for testing and enable additional lab is there. CPET is working as a STAR activity. STAR means we will share the next slide. Share the slide. STAR. The government has given the STAR means CPET working as a STAR technology means the first one is skill training. We are devoted for skill training. Skill means we are giving under the Ministry of Skill, we are doing various skill development training program. Like upskilling training program is like you are an engineer, you want to learn something from us. Like you are mechanical engineering, you want to learn the software to develop any component. So we have the software, we are the things, we will call you and we'll give the training to you. That will come the upskilling training. For become an engineer, complete engineer, we will share all our technology to you, all the students available. The second one is technical support service. So CPET, in CPET, we have the two teams, teaching team as well as a production team. So ministry has given all industrial machine to us. They have given ki now Make in India concept is going on. You have the team, well teaching team, well production team. You do the work for them. So we are doing work for all government agency like Ministry of Defense, also Ministry of Commerce, other ministry work we are doing. So we have all technology related to plastic field. We have the software for the designing. We have the software for the machining manufacturing field. So we are one production team doing for the technical support service. And for academic activity, ministry has given academic all work. So we are doing the ITI in the only for the plastic engineering field. We are doing ITI, NCVT approved course. We are doing diploma in plastic engineering. We are doing BTech in plastic engineering. We are doing MTech in plastic engineering, and also research center we have that. Art for research and academic. So ministry has set up 3 R&D wings to all over India, 3 centers, Chennai, Bhubaneswar and Bangalore. So we are doing all research activity in India in the field of plastic, polymer, composite plastic and nanofiber plastic.
So initial that I told that 1968 CPET is established in Chennai, and now 2024 we have total 45 center all over India. Minimum one center in each state. Now some center having 2 year more center. So government has planned within 5 years they are going to become 100 center in India, because while they are increasing the center, the CPET not only for the academic. Now you have seen the star activity. We are doing technical support service. So if any like in Jharkhand, so just change the slide. CPET Ranchi stabilized in 2017. This is the first center in Jharkhand. Now, in after 2 years, we are going to set up a new center in Devghar also. Government has given 100-acre land for plastic park, in which 100 plastic industries going to set up. For some industries for toy related, some industries for medical setup. So similarly, one CPET center will be there. What we are doing, we are teaching them develop the student, and we will get the placement to student in the same industry. Uh, why government is increasing the CPET? Somewhere minus why plastic? Because you are seeing slowly plastic is going to replace the metal all. Previously in your household all item is with the metal glass, metal plate, everything. The household fitting items, plumbing fitting items, your bike and 4-wheeler, 2-wheeler, all the metal part. Nowadays e-vehicle concept is there, lightweight concept is there, recycling concept is there. So now plastic is based is everything. It will be easily for recycling, it will be easily for handling. So now plastic, that will, I'm just saying the plastic, but it is a polymer. The polymer is a composite polymer. So it is replacing to all the things to metal. So government is planning to increase the CPET. We are teaching the student in the field of plastic. We are developing the manpower from ground level to high level, with ITI level to PhD research level in plastic engineer. We are developing the student. Also, we are supporting the plastic industry. Like in 2017, we have established in CPET Ranchi. We are supporting the private industries, plastic industries, to how to set up the industry in Jharkhand. So after coming 2017 to 2024, we have set up more than 20 plastic industries in Jharkhand. So if like you are the entrepreneur mind, sir, I want to set up a industry for like pipe, PVC pipe, HDPE pipe. So we'll guide you which machine is best for you. Our team provide the full installation setup. Our team provide the manpower, because we are teaching the team. We have the good manpower. I will give you manpower. We'll support to everything. If you want to supply to government for any tender, so we'll guide to how to get the BIS license and everything. So because why you supporting? If you are as an industry, if you are going, then our student will grow with you. So this concept we are working in CPET. Ministry is giving the target. So parallelly CPET is increasing, and as well as we are increasing the plastic industry in setup. You can like in Jharkhand, you have only the coal industry is more and metal industry is more. So slowly, our target is within 5 years we have to develop 100 plastic industries in Jharkhand. Means plastic industry is not there. Like you are using your household every pipe, PVC pipe, HDPE pipe, water tank is there. Your electronics item, your TV, washing machine, fridge, everything with the outer facing is plastic. So in Jharkhand, we have to set up the all industries for manufacturing in itself. Now, for any automobile part, only the all plastic item is manufactured by the all Eastern India country, state, like Gujarat, all manufacturing. Now we are planning to set up all industries in Jharkhand only. The next slide. So in Ranchi, we are doing 2 programs in diploma programs, diploma in plastic engineering and diploma in plastic mold engineering technology. Diploma in plastic technology is equivalent to chemical engineering, and diploma in plastic mold technology is equivalent to mechanical engineering. These are all 3-year programs. As I told, CPET is also doing skill development training program, like equivalent to ITI course. The all ITI course is approved by NSDC Council, National Skill Development Council, Ministry of Skill, and the all courses is NSQF aligned, National Skill Qualification Framework, and also NCVT approved course. So we are doing in the field of plastic machine operator. Like if you are doing ITI anyone, so like they are saying ITI turner machinist. So here we are giving name machine operator, because this is ground level course. They have to operate the machine. ITI people. So this is a trade we are doing in Ranchi here. Machine operator, plastic injection molding. These are all plastic related machines they have to operate.
So also, government has given target to recycling. Now just you anyone having doubt na ki sir government is banning the plastic, why government is promoting the CPET and increasing the activity? आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन है किसी में? कभी सुना होगा ना प्लास्टिक को आपको बैन किया जा रहा है, प्लास्टिक के कॉन्सेप्ट को, फिर इतना प्लास्टिक कॉन्सेप्ट क्यों है? प्लास्टिक बैन नहीं हो रहा, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो रहा है बिकॉज हमारे कारण, क्योंकि हम लिटरिंग करते हैं, क्योंकि लिटरिंग मीन्स हम सिंपल एक कैरी बैग लिया, यूज किया, उसको रोड पे फेंक दिया। एक कैरी बैग को बनाने का कॉस्ट मतलब उसके वेट के हिसाब से मुश्किल से 10 से 15 ग्राम होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10 से 15 पैसा होगा मिनिमम मैक्सिमम। और जब उसको हम रिसाइकलिंग करेंगे तो एक मैन पावर को डिप्लॉय करेंगे, उसको कैरी करेगा, वॉश करेगा, रिसाइकिल करेगा, तो जितना वो कॉस्ट है उस प्लास्टिक का कॉस्ट 15 पैसा है, उसको रिसाइकिल करने का कॉस्ट 1 रुपया हो रहा है। तो कोई भी इंडस्ट्रीज कोई भी करना नहीं चाहिए, लॉस पे काम होगा, और गवर्नमेंट इतना फंड नहीं करेगी लॉस का चीज को काम कर पाए। इसलिए आपका भी आपने देखा होगा कि दूध का पैकेट का कॉस्ट भी आपका 2 रुपया बढ़ चुका होगा विद इन 10 टू या 2 या 3 मंथ्स में, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसाइकलिंग के कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए हर मिल्क के जितने मैन्युफैक्चर उसका थिकनेस को बढ़ा दिया गया। आपका पैकेट पहले दूध का पैकेट बहुत पतला आता था, वो मोटा आएगा, क्योंकि वो कॉस्टिंग बढ़ गया। आपकी आप दूध का पैकेट यूज कीजिए, फेंक दीजिए, उसको रिसाइकिल करने में कॉस्ट ज्यादा लॉस नहीं रहेगा, क्योंकि आदमी तो वही लगेगा चाहे वो 15 पैसे का प्लास्टिक को यूज कर उठाए या 50 पैसे का प्लास्टिक उठाए। तो बेसिकली प्लास्टिक हमेशा आपकी यूज बिना प्लास्टिक के आप कॉन्सेप्ट समझ नहीं सकते। आपको कोई भी लिक्विड आइटम को कैरी करना है उसके लिए बेस्ट है, प्लास्टिक के बिना कुछ नहीं है, लाइट वेट है, इजी कॉन्सेप्ट है। तो इसी व्यू में गवर्नमेंट अब काम कर रही है, सिंगल SUP बैन किया गया है, अप टू 80 माइक्रोन से नीचे के जो भी प्लास्टिक थिकनेस है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया बैन है, उससे थिकनेस से ऊपर बना जो बनाना है, तो आपके हर जगह वो थिकनेस बढ़े, ताकि वो आप अगर इनकेस, क्योंकि आप ह्यूमन के नेचर को हम चेंज नहीं कर सकते, आप यूज कीजिएगा, आप फेंकेंगे ही, तो उससे आप सबको रोक नहीं सकते। तो रोकने से अच्छा है गवर्नमेंट ने बोला कि मैन्युफैक्चरर को आप पतला जो थिन पॉलीमर प्लास्टिक को बनाओ ही मत, आप थिकनेस बढ़ा दो, ऑटोमेटिक उसके अलावा जो रिसाइकलिंग के लिए हमें जो आदमी चाहिए वो सेम वही यूज करेगा, उसको लाएगा, कैरी करेगा, वॉश करेंगे, देन रिसाइकिल करेंगे। नाउअडेज तो प्लास्टिक के रिसाइकलिंग में ऑलरेडी हम सीपेट ऑलरेडी म्युनिसिपल ऑफ रांची के साथ और CCL के साथ कोलैबोरेट के हम लोग काम भी कर रहे हैं। हम लोगों ने म्युनिसिपल के साथ जितने प्लास्टिक को गैदर किया है, देन प्लास्टिक को रिसाइकिल का कॉन्सेप्ट किया है। प्लास्टिक नॉर्मल किसी भी रिसाइकिल है, मेटल को भी रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन मेटल को रिसाइकिल में क्या है, उसके कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको मेल्ट करने के लिए ओवन चाहिए जिसमें टेम्परेचर मिनिमम 1000 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और हैंडलिंग भी टफ है। जबकि एक कोई भी पॉलीमर हो, इधर मिनिमम HDP पॉलीथिलीन से बात करके पॉलीकार्बोनेट से हम बात करें, मैक्सिमम 300 डिग्री सेंटीग्रेड में ऑल प्लास्टिक मेल्ट हो जाते हैं विदाउट बर्निंग। तो प्लास्टिक को इसलिए हम कैरी कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रिसाइकिल करके वो फिर से सेल आउट हो सकता है और यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। आपने सुना होगा मार्केट में सेकंड हैंड प्लास्टिक के कंपोनेंट मिलते होंगे जो इजी है। आज के डेट में पूरा टाटा ने काम कर रही है, रिसाइकिल प्लास्टिक को परचेज करके हम रिसाइकिल करके उसके ब्रिक्स बनाया जा रहा है। ब्रिक्स का मतलब है जो फाइबर ब्लॉक बनते हैं, अभी आप रोड पे जब चलते होंगे तो वो सीमेंटेड फाइबर ब्लॉक यूज हो रहे हैं, लेकिन टाटा ने पूरे जमशेदपुर प्लांट के अंदर वो रिसाइकिल प्लास्टिक के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। अब वो प्लास्टिक को रिसाइकिल, आप चेंज कर दीजिए स्लाइड। प्लास्टिक को रिसाइकिल कॉन्सेप्ट हम लोग क्या, प्लास्टिक को कलेक्ट करते हैं, वॉश करते हैं, मशीन में ग्राइंड करते हैं, एक एक्सट्रूडर मशीन होता है ग्रेनुल्स के फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि किसी भी मशीन में हम ग्रेनुल्स के फॉर्म में डाल सकते हैं, अदरवाइज मशीन को जाम हो सकती है। इस ग्रेनुल्स के थ्रू इस किसी भी प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं जो यूजफुल हो ज्यादा, क्योंकि रिसाइकिल प्लास्टिक है तो ऑटोमेटिक इतना डिफेक्ट होंगे, तो ऐसे कंपोनेंट यूज किया जाए ताकि हमको दिक्कत ना हो। तो आज के डेट में फाइबर ब्लॉक किया जा रहा है या कोल्टार की जगह आजकल ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट भी कोल्टार की जगह रिसाइकिल प्लास्टिक यूज कर रहा है। प्लास्टिक को मेल्ट करके उसमें स्टोन चिप्स मिक्स करके रोड बनाया जा रहा है, ताकि आज के डेट में जो प्लास्टिक के रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट को खत्म करना है। तो ये दो कॉन्सेप्ट पे काम किया जाएगा। तो प्लास्टिक रिसाइकिल के सेटअप में सीपेट रांची में सारे मशीनरीज हमारे पास अवेलेबल है, रिसाइकलिंग एक्सट्रूडर है, ग्राइंडर मशीन है, ग्रेनुल्स है। आप अगर कोई इंडस्ट्रीज रिसाइकलिंग वर्क भी करती है तो ये ग्रेनुल्स मार्केट में सेकंड ग्रेड में मिल जाती है। मतलब अगर कोई नॉर्मल वर्जिन मटेरियल प्लास्टिक है 200 रुपीज के जी, रिसाइकलिंग मटेरियल ऑलमोस्ट 50% रेट में बिक्री होता है। सो फैसिलिटीज हमारे सीपेट रांची में है। एज स्टार एक्टिविटी में सीपेट में बेसिकली हमारे रांची में 4 डिपार्टमेंट वर्क करती है। फर्स्ट वन इज डिजाइन डिपार्टमेंट, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि आप एज ए इंडस्ट्री पर्सन है, आपको हेल्प चाहिए
तो हम आपको इंडस्ट्री सेटअप में भी हेल्प कर पाएंगे। साथ साथ पैरेलली आप एज एंटरप्रेन्योर है, आपके माइंड में कि सर हम कुछ ऐसा कंपोनेंट बनाए ताकि हम मार्केट में सेल आउट कर पाए। एक एग्जांपल है, सिंपल मैं एग्जांपल लेता हूँ। आप एक मार्केट में वाटर बोतल, क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट में बिहार और झारखंड में ये कॉन्सेप्ट ज्यादा आ रहा है, क्योंकि आरओ प्लांट तो हर घर में इजीली लगा सकते हैं, लेकिन फुल वाटर बोतल, क्योंकि आप जब ट्रेन पे जाओगे अलग अलग ब्रांड की आपको देखोगे, कोई निर्मल जल, ये जल दिखते रहता है, क्योंकि इसलिए अवेलेबल है। सर मेरा कुछ डिजाइन है कि हम वाटर बोतल डिजाइन बनाए, लेकिन कुछ अलग डिजाइन करना है, कुछ कर्वेचर से अलग जाए ताकि इंटैक्ट हो, या कुछ शेप दे। आज के डेट में कुछ सारे लोग जो डिजाइन करना चाहते हैं टॉय डिजाइन, क्योंकि बोतल में वो टॉय का फिगर हो, जैसे टेडी बियर का फिगर आ जाए किसी, ताकि बच्चे को अट्रैक्ट करता है। तो कुछ नया कॉन्सेप्ट है, तो हमारा वही पहला डिपार्टमेंट होता है डिजाइन डिपार्टमेंट। डिजाइन डिपार्टमेंट में हमारे पास सारे डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर है, जो 2D से लेकर 3D और एनालिसिस के साथ साथ, जो बेसिकली आपके, क्योंकि इंजीनियरिंग आप जो इंजीनियरिंग फील्ड में यहाँ पे है उसके लिए भी कॉमन है, चाहे अगर मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, सबको डिजाइन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चाहे वो इलेक्ट्रिकल सर्किट का डिजाइन करे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल कंपाउंड का डिजाइन करे, सिविल वाले बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का डिजाइन करे। तो हमारे पास बेसिक ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स है, मास्टर कैम है, जो अभी आप फ्यूचर में पता जब मार्केट में जाएंगे तो पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर का क्या वैल्यू है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन डिपार्टमेंट है, जहाँ हम डिजाइन करते हैं। आफ्टर डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने सोचा अगर एग्जांपल दिया कि मुझे क्वाई के फिगर वाला, मतलब टेडी के फिगर वाला एक बोतल चाहिए, जिसमें वो टेडी बोतल का डिजाइन नॉर्मल हम देख रहे हैं सिंपल ही सेट है। अभी हमारे पास एक कस्टमर है, वो चाहता है कि पूरा बोतल ही लगे टेडी का फेस है, बैक साइड राउंड है, फेस है और टेडी है। तो उसको डिजाइन करने के लिए उसका टूल डेवलप करना पड़ेगा, तभी तो बन पाएगा। तो द सेकंड वन डिपार्टमेंट हमारे पास जो बैक चल रही है, लास्ट में ठीक है, सेम स्लाइड पर ये स्लाइड सेम पर ये बैक साइड और बैक साइड। द थर्ड वन जो आपको दिखाया कैड कैम ECE, कैड कैम सीइंग इज कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, मींस डिजाइन विद एनालाइज डिजाइन डिपार्टमेंट है। The second one tool room department, जहाँ tool room department में हम डेवलप करने के लिए जो भी टूल चाहिए उस टूल को डेवलप करते हैं विद द मींस ऑफ सारे मशीनिंग मेथड, आइदर आईटी मैन्युफैक्चरिंग हो या सबरूटीन मैन्युफैक्चरिंग मेथड, जिसमें हमारे पास मैं आगे जाऊंगा क्या है मशीन है। बेसिकली CNC आज के डेट में CNC मशीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। मैनुअल आजकल कोई भी इंडस्ट्री में मैनुअल मशीन नहीं होती, मशीन को मशीन इंटीग्रेटेड विद द कंप्यूटर। आपको एक सिंपल एक गाड़ी के लिए गियर बनाना है या फिर एक रेल के व्हील्स को व्हील बनाना है, आप रॉ मटेरियल रख दो, मशीन के स्लाइड बंद कर दो, कंप्यूटर में प्रोग्राम बना दो, मशीन के थ्रू ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग कर देगी। दैट इज CNC मशीन, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। सो टूल रूम डिपार्टमेंट हम सारे मशीन को डील करते हैं। प्लास्टिक प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, दैट इज द थर्ड वन डिपार्टमेंट, जहां पे आपने डिजाइन किया टूल रूम ने उसके मोल्ड या डाई जो भी उसके रिलेटेड कंपोनेंट ये सिंपल इंपोर्ट करके फार्मा बना दिया। प्लास्टिक प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट उस फार्मा को मशीन पे लगा के आपको जो बोतल बनाना है वो बोतल बना के देगी। The fourth one, the plastic testing laboratory, that is a quality control laboratory. This laboratory is also approved by NABL certified lab and BIS certified lab. वहाँ पे हम क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं। जैसे आपका कॉन्सेप्ट है कि मुझे प्लास्टिक का बोतल बनाना है पानी के लिए, टेडी का फेस बनाना है, वो प्लास्टिक तो मैंने बनाया, वो प्लास्टिक ऐसा तो नहीं इसमें पानी डाला उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो, वो पानी पीने से आपको हार्मफुल करता है। तो वो क्वालिटी टेस्टिंग के लिए हमारे पास टेस्ट लैब सारे मशीन अवेलेबल है, जो एज पर द स्टैंडर्ड्स की डेंसिटी, केमिकल कंपोजिशन सारा टेस्ट करती है। ऐसा तो नहीं हार्मफुल केमिकल्स में ऐड ऑन हो चुका है गलती, क्योंकि पॉलीमर्स मटेरियल जो होते हैं वो पेट्रोकेमिकल कंपनी से आते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं हार्मफुल मिक्सिंग को पहले से वो सारे टेस्टिंग करते हैं। तो इस तरह से फुल राउंड साइकिल होता है, डिजाइन, टूल, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, ये चार डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट हमारे लिए मेन होते हैं। अब अदरवाइज और डिपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं ये एकेडमिक्स से रिलेटेड, लाइक डिजिटल लाइब्रेरी, कम्युनिकेशन लैब, पूरी फार्मेसी लैब। As I told, plastic processing lab, we have all these machines, microprocessor control, automatic injection molding machines. Here also, like these all machines, microprocessor control machines. So these are not a single technical engineering related company. These are all like a permanent engineering. These are all in the electronics. The machine is controlled by all the microprocessor control computers. It is like that. We have this also facility in the plastic processing lab. This is a photograph of the lab. We have this machine, injection molding machine. This is previously our lab. Now we have a new building also. Or this week we are going to move this machine.
This is a molding machine. This same machine the industry, Tata Motors are using this same machine for manufacturing the all automobile components. This is a hydraulic control machines. This is a basic hand injection molding machine. Initial of the any training, we are not giving the machine to students. So initially they're like this is a manual control machine. This is also injection molding machine with the high turning. So we can manufacture up to chair also here. When you are sitting in the plastic chair, this is a 500 ton machine. This is a plastic for rotational molding. So for rotational molding, it's like it is in mechanical centrifugal casting word. So for heating tank manufacturing tank, this concept is working. This is inside the mold here. We are pushing inside the raw material. That machine is rotated centrifugally and we get outside by this. And this mold is for 250 liter tank. So similarly, in the second tool department, we have the CNC milling machine, we have CNC lathe, we have CNC EDM, electric discharge machining, we have CNC wire cut EDM, we have CNC coordinate measuring machines. Parallelly, we have all conventional machines out there. This is a fully medical department for manufacturing the mold and die. जैसा मैंने आपको बताया था सीएनसी मशीन यही सीएनसी मशीन है नॉर्मली आपका मिलिंग मशीन आते हैं इंडस्ट्री में देखा होगा ऑपरेटर मशीन हाथ से चलाते हैं ये सीएनसी मशीन का आपके अंदर मशीन में कंपाउंड कर दीजिए गेट ड्रॉप कर दीजिए और वो आप एज ए सीएनसी प्रोग्रामर आपका प्रोग्राम करना पड़ेगा और मशीन की को अच्छी होती है बस हो गया फास्ट कर दीजिए फोटोग्राफी हटा दीजिए This is a conversion machine. This is a printing machine. This is software. We have that in Apache. This is our character design lab. This is some component we have manufactured in separate Ranchi for some private clients. Some clients want to develop a mug and want to sell obviously. Previously they are purchasing from Delhi and for this mug they are selling market 20 rupees or getting 50 rupees. We have manufactured the mold with the component only for 5 rupees. The manufacturing cost of this mug only 5 rupees. So if they get the profit from that. So we are supporting the Jharkhand India project for here growth. This is a black polymer HDP material and the same the tank is manufactured with this material. Actually. This is a die and mold. As I told for manufacturing any component, we have to manufacture the die. That is simple called pharma. आपको ये बनाना है तो इनके लिए pharma चाहिए. तभी भी बनता है बस एक कोई भी कंपोनेंट के लिए फार्मा तो ये हम लोग मोड सीएनसी मशीन में उसके फार्मा बनाते हैं थैंक यू on behalf of CPET CNC I request you to all and I request to Mrs. Sir just came for one day and visit our facilities. You all are always welcome here. Thank you so much for this very informative session. Now I would like to request respected Professor Arvind Kumar Sir, Dean Academics, ICFAI University, Jharkhand, for introducing various schools and departments. Please. Thank you, Dr. Krishnan. Mr. Masood Haidar from
respected parents, dear colleagues, and my dear students. इसी तरह मैं अपने एड्रेस में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको सक्सेस का मूल मंत्र बताया और ये भी समझाया कि सिर्फ डिग्री से सफलता नहीं मिल सकती। मैं बहुत गौरव के साथ कहना चाहता हूँ कि प्राइम यूनिवर्सिटी झारखंड में आपको उन सभी मूल मंत्रों को सीखने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर जो फैकल्टीज हैं उनमें से बहुत सारे फैकल्टीज जो है वो इंडस्ट्री में काम करके यहाँ पे आए हैं, तो उनको पता है इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है और क्या चाहती है इंडस्ट्री आपसे, और आपने अगर वैसा नॉलेज, वैसा स्किल, वैसा एटीट्यूड और वैसा बिहेवियर पाते हैं तो नहीं आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, पर आप खुद भी बहुत ऊंचे तक राइज कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी झारखंड में इन सभी चीज के अवसर मिलेंगे। अब ये आप पर है कि आप उस अवसर का कितना फायदा उठाते हैं। Be ready to learn, be ready to change। और इसी कड़ी में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी झारखंड में बहुत सारे इंडस्ट्री है जिसमें सर्टिफिकेट दिए हैं और समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे कि उस एमओयू के जो टाई अप्स हैं उनसे आप कैसे और कब कब एसोसिएट होके अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। नॉलेज तो आपको यहाँ मिल जाएगी, बट स्किल के लिए आपको बहुत सारे और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, जो कि आपके टीचर्स आपको समय समय गाइड करते रहेंगे और उससे हमें उम्मीद है कि आप पूरी तरह आसानी होंगे। यहाँ पर यूनिवर्सिटी झारखंड में 3 स्कूल्स हैं, फैकल्टीज हैं, एक मैनेजमेंट की, पहला स्कूल, इसमें बीसीए, बीसीए डाटा एनालिटिक्स, बीसीए साइबर सिक्योरिटी ये प्रोग्राम चलता है। बीटेक, बीटेक लैटरल एंट्री, डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी ये सारे प्रोग्राम चलते हैं डिसिप्लिन में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस। और नेक्स्ट स्कूल है इक्फाई मैनेजमेंट स्कूल, इसमें यहाँ पर बीबीए, बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स, एमबीए प्रोग्राम, एक्जीक्यूटिव एमबीए फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स और पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम चलता है। और एक इक्फाई लॉ स्कूल है, इसमें बीबीए एलएलबी ऑनर्स, बीए एलएलबी ऑनर्स और एलएलबी प्रोग्राम। हमारे आईएमएस पे यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि हमारे जो इंडस्ट्री टाइप हैं उनसे समय समय पर हम लेक्चरर्स लेते हैं जो कि आपको इंडस्ट्री में उस फील्ड में क्या चल रहा है ये बताते हैं। तो रेगुलर फैकल्टीज के अलावा हमारे हर स्कूल में विजिटिंग फैकल्टीज होंगे जो इंडस्ट्री से आएंगे, वो भी आपको समय समय पर गाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हमारा प्रोग्राम बाकी यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम से थोड़ा डिफरेंट है। उसको हम लोगों ने स्टूडेंट के लिए जो ज्यादा लाभकारी तरीका हो उस तरीके से उस प्रोग्राम को सजाया है। इसमें हर साल 6 से 8
हफ्ते के लिए इंटर्नशिप होती है इंडस्ट्री में। बीटेक और बीसीए में जो 3 ईयर प्रोग्राम और 4 ईयर प्रोग्राम है, उसमें सेकेंड ईयर से बच्चों को इंडस्ट्री में भेजते हैं और 1 साल इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स यहीं पर कॉलेज में करवाने की कोशिश होती है फर्स्ट ईयर के बाद। एमबीए में फर्स्ट ईयर में ही इंडस्ट्री रेडी हो जाते हैं, तो वो लोग को हम लोग फर्स्ट ईयर की समर इंटर्नशिप इंडस्ट्री में करवाते हैं। इंडस्ट्रियल विजिट्स होती है, इंडस्ट्री से कंसल्ट करके हम लोग हर साल करिकुलम में बदलाव करते हैं और एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव करने के लिए तरह तरह के कोर्सेज सेमेस्टर के करिकुलम में प्रोग्राम स्ट्रक्चर में डाले गए हैं। स्टूडेंट से हम लोग इस पर फीडबैक भी लेते हैं। हर एग्जाम के पहले एवरी स्टूडेंट हैज टू गिव फीडबैक अबाउट द सिलेबस कवर्ड, whether they could understand it in the class or not, any difficulty they faced। और ये पूरी तरह ऑनलाइन फीडबैक है, इसमें हम लोग कौन स्टूडेंट क्या लिख रहा है ये नहीं देखते हैं, हम लोग उस फीडबैक को एनालाइज करके फिर प्रोग्राम में जो सिलेबस है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हर स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस की एक हैंडबुक दी जाती है। हम लोग सॉफ्ट कॉपी तो निश्चित ही देते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार सबको एक एक हार्ड कॉपी भी मिले, लेकिन सॉफ्ट कॉपी सबको ईमेल में जरूर जाएगी। आप लोग अपना ईमेल सही वाला रजिस्टर करें। नेक्स्ट, पेरेंट्स को हम लोग पार्टनर की तरह ट्रीट करते हैं उनके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी पेरेंट्स से कि वो यूनिवर्सिटी से जो भी फीडबैक जाता है उसको बहुत सीरियसली ध्यान से लें और फैकल्टी मेंटर से लगातार संपर्क में रहें। कोई बच्चा अगर नहीं आता है तो हम लोग बीच बीच में उसके पेरेंट्स को भी एसएमएस से इन्फॉर्म करते हैं। तो सभी पेरेंट्स ये सुनिश्चित करें कि हम लोगों के पास उनका सही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, हम लोग सेमेस्टर फी के अलावा और कोई पैसा चार्ज नहीं करते। कभी कभी सोशल मीडिया में कुछ कुछ खबर आई कि इंडस्ट्री में जो इंटर्नशिप होती है उसके लिए यूनिवर्सिटी इतना पैसा लेती है। ये बिल्कुल गलत खबर है। यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री इंटर्नशिप के लिए कोई फीस नहीं लेती, लेकिन अगर इंटर्नशिप आपकी जमशेदपुर में है तो वहां पर खर्चा जो है वो स्टूडेंट को स्वयं उठाना पड़ता है, लेकिन वो कंपनी भी कोई चार्ज नहीं लेगी और इन्फ्रा इंडस्ट्री भी कोई चार्ज नहीं लेगी इंटर्नशिप के लिए। तो कृपया पेरेंट्स इस बात को नोट कर लें और किसी भी भ्रम में न पड़े। एग्जामिनेशन के लिए भी कोई एक्स्ट्रा फी नहीं है, लाइब्रेरी के लिए भी कोई एक्स्ट्रा फी नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का फी है। अगर मेन एग्जाम में किसी कारण से बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया, पास नहीं कर पाया या एब्सेंट रह गया तो उसको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना होगा और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का फी चार्जेबल है। और सबसे बड़ी बात कि सारे पेमेंट्स यूनिवर्सिटी में डिजिटल मोड में होंगे और वेबसाइट के थ्रू जाके आप डायरेक्ट अकाउंट में पैसा देंगे, कोई कैश का लेन देन नहीं है। तो कृपया अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी के नाम पर कोई कैश नहीं दें। नेक्स्ट, लर्निंग की सुविधा के लिए हम लोग को क्लास में पढ़ाते ही है, असाइनमेंट भी देते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टडी मटेरियल हम लोग हमारे डिजिटल पोर्टल स्वाध्याय में लोड किए हुए। वो स्टूडेंट अपनी मर्जी से अब सेल्फ स्टडी के लिए कभी भी घर बैठ के भी या ट्रेवल करने के समय भी मोबाइल पर या लैपटॉप में ये पोर्टल का उसको एक्सेस दिया जाएगा पासवर्ड से। वो खोल के उसको देख के पढ़ सकता है, समझ सकता है और कोई दिक्कत होती है तो कंसर्न टीचर से कंसल्ट कर सकता है। उसी तरह एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का पोर्टल डेवलप किया जा रहा है जिसमें स्टूडेंट को और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, उसका एग्जाम का रिजल्ट, उसका अटेंडेंस, सब कुछ उसको अपना उस पोर्टल पर
दिखाई देगा और हम कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स को भी उसका एक्सेस मिल जाए। नेक्स्ट, ये कुछ तस्वीरें हैं जो इंडस्ट्री विजिट पे हमारे सीसीएल के माइंस में गए थे। ये एचईसी में इंटर्नशिप की तस्वीर है। नेक्स्ट, ये एकेडमिक फैसिलिटीज है हम लोग के पास। हर क्लासरूम में एलसीडी प्रोजेक्टर लगा हुआ है। 6 आईटी लैब है जिसमें 190 कंप्यूटर्स हैं। करीब करीब 100 एमबीपीएस का हमारा लीज लाइन इंटरनेट है। लाइब्रेरी में करीब 40,000 किताबें हैं और लाइब्रेरी में एक डिजिटल सेक्शन है जिससे कि आप ऑनलाइन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को एक्सेस कर सकते हैं। लॉ स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल मूड कोर्ट बना करके रखा हुआ है जिसमें कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सारे लैब्स हैं हम लोगों के पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वर्कशॉप वगैरह। नेक्स्ट, ये हमारी 6 लैब है और सर ने जैसा बताया विन लैब के बाद है वो 6 नंबर पर भारत कंप्यूटर के साथ एक वर्ल्ड इनोवेशन लैब है जो कि बहुत रेयर चीज है। नेक्स्ट, ये कुछ लैब की फोटो है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ध्यान से आप लोग इसको याद कर लें कि एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका रजिस्ट्रेशन हर सेमेस्टर के बिगिनिंग में एक लास्ट डेट दी जाएगी, उसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा और आपको हर सब्जेक्ट के क्लास में 75% अटेंडेंस अगर होगी तभी आपको एग्जामिनेशन में बैठने मिलेगा। आप लोग कृपया इस बात को नोट कर लें। एग्जामिनेशन में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि 4 एग्जामिनेशन है। 2 इंटरनल टेस्ट है बेस्ड ऑन क्लास परफॉर्मेंस है। इंटरनल असेसमेंट क्लास परफॉर्मेंस, अटेंडेंस, असाइनमेंट, टेस्ट फीस वगैरह जो कंसर्न सब्जेक्ट के टीचर लेंगे उसको असेस करेंगे, उसमें आपको कितना नंबर मिलता है। उसके बाद 3-3 घंटे का 2 एग्जामिनेशन एक सेमेस्टर में होगा, मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस तरह से आपका रिजल्ट बनेगा। 4 एग्जामिनेशन जो लिया, इंटरनल टेस्ट 1 10 नंबर का होगा, उसके बाद मिड सेमेस्टर 100 नंबर का होगा जिसका 30% वेटेज है। इंटरनल 2 मिड सेमेस्टर के बाद होगा, वो 10 नंबर का, उसका 100% वेटेज है। एंड सेमेस्टर 100 नंबर का 3 घंटे का होगा, उसका 50% वेटेज है। और एग्जाम्पल से बताया हूँ कि अगर किसी को इंटरनल टेस्ट 1 में 10 में 8 मिला है, मिड सेमेस्टर में 100 में 70 मिला है, इंटरनल असेसमेंट 2 में 10 में 7 मिला है और एंड सेमेस्टर में 100 में 60 मिला है, तो रिजल्ट मेकिंग के लिए उसका सेमेस्टर का जो ग्रेडिंग होगा वो कैसे बनेगा। उस इंटरनल 1 में उसको जो 8 मिला है वो पूरा 8 उसका फाइनल स्कोर में आएगा। मिड सेमेस्टर में जो 70 मिला है उसका 30% वेटेज है तो उसका 21 नंबर आएगा। इंटरनल असेसमेंट का 100% वेटेज है तो उसका 7 नंबर सीधे सीधे फाइनल स्कोर में आएगा। और एंड सेमेस्टर में उसने 60 पाया है, उसका 50% वेटेज है तो उसका 30 नंबर जुड़ेगा। इस तरह उसका फाइनल स्कोर सेमेस्टर का 66 होता है, उसका 66% है। उस बेसिस पर उसका जीपीएस, जीपीए और ग्रेडिंग होगा। और ये सारी चीजें आपको स्टूडेंट हैंडबुक में लिख के मिलेंगी। इस पर आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अपने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से मिल सकते हैं बाद में, जो कि धीरे धीरे आप जैसे कि परिचित होंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मॉडल एग्जीबिशन वगैरह हम लोग करते हैं, ये स्टूडेंट ने कुछ मॉडल बनाए हैं और बाहर से भी कुछ एग्जामिनर्स आते हैं। ये सारी चीजें आपके इंटरनल असेसमेंट में काउंट होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हम लोग का कन्वोकेशन है, गवर्नर साहब ने डिग्री दी थी, उसका एक सब कुछ फोटो लगा हुआ है। थैंक यू, आप लोग काफी भाषण सुन लिया। But be ready to learn, that is goal one I would say, and be ready to change. Thank you very much.
Thank you, sir. Now I would like to request respected Dr. Sopna Chaudhary ma'am, Dean Student Welfare, for a vote of thanks of today's event. Please wait. Thank you, Dr. Chandra ma'am. आप सभी को मेरा नमस्कार जोहार। धन्यवाद या से पहले कुछ आवश्यक सूचनाएं स्टूडेंट्स के लिए मैं देना चाहती हूँ। आप लोगों को एक फोल्डर मिला है, सारे बच्चों को एक फोल्डर मिला है। In that folder, you have the details of your class mentor, your head of the department and assistant deans. यहाँ से इस रूम से निकलने के बाद आपके फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसे हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर आपको बताएं जो आपके मेंटर है या फैकल्टी गार्जियन है उनका फोन नंबर ईमेल आईडी आपको उसमें प्रोवाइड है। उसी फोल्डर में आपको एक फॉर्म दिया गया है जो आई कार्ड का फॉर्म है। आप यहाँ से निकल के उस आईडी कार्ड फॉर्म को फिल कीजिएगा जिसमें आपके बर्थ डिटेल्स भी मांगे गए। सो ये दो डिटेल्स आपको प्रोवाइडेड है आपके फोल्डर पे। यहाँ से आईएमएस के जितने स्टूडेंट्स हैं जो द इक्वाई मैनेजमेंट स्कूल वो ग्राउंड फ्लोर रूम नंबर 007 में प्रोसीड करेंगे, प्रस्थान करेंगे फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड लंच। For the IPS student, the IFI Tech School just इसके ऊपर सेकेंड फ्लोर के ऑडिटोरियम में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और लंच डिस्ट्रीब्यूशन के अरेंजमेंट है। The IFI Law School के सारे स्टूडेंट्स यही यहाँ बैठे रहेंगे, सामने वाली क्लासरूम में लंच के अरेंजमेंट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहीं पे होगा। इसके अलावा एंटायर डे हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म मेजरमेंट के लिए टेलर बैठे हैं number 104 पे। I repeat, the tailor is here in the room number 104. आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के लंच करा के you can move to tailor in 104 so that क्लास स्टार्ट होने के within 1 week आपके पास आई कार्ड आ जाएगा, आपके पास आई कार्ड के फॉर्म है and tailor is there for the uniform. Humble request, after 15 days of the class commencement, you need to wear the uniform and ID card. Students, you are inside the university premises and discipline is expected from each one of you. So uniform and ID card is the first point in which we will be focusing on discipline and rest we are there to provide you helping hand. मेंटर मतलब आपके फैकल्टी गार्जियन, घर पे जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी पे आपको हम एक गार्जियन दे रहे हैं, फैकल्टी गार्जियन। आप चाहे तो पुलिस ओपन करके देख ले, उसमें आपके फैकल्टी गार्जियन, आपके असिस्टेंट डीन, आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सभी के कांटेक्ट डिटेल्स डे 1 हमने शेयर कर दिए ताकि आप सेफ महसूस करें अपने आप को इस यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस में। आज से आप इक्वल फैमिली के मेंबर हैं, इसीलिए we expect we कि अगर आप हमारी तरह से कोऑपरेशन और हेल्प की उम्मीद करते हैं, same is expected from each one of you so that we can together move ahead. कुछ लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि सिपिट से प्रेजेंटेशन क्यों? सिपिट हमारे one of the MOU partners है। Just sitting inside the classroom is not enough for development of the student. So यहाँ पे आपने देखा कि सिपेट इंडस्ट्री के बारे में बता रहे, हमारे स्टूडेंट्स को हम इंडस्ट्री विजिट पे वहां ले जाएंगे। We have some certification program with them. Similarly, with Infosys, within next 10 days, you will have a interaction session and 3 days certification program. From team of UNICEF also, the team will be coming for presentation and the industry academia connect for development. यही रीजन था कि आज के इंडक्शन प्रोग्राम में we had the team member from CIPIT. Moving towards the vote of thanks. सबसे पहले मैं शत नमन उन गार्जियंस को करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल के अपने बच्चों के साथ यहाँ प्रस्थान किया। Thank you each one of you यहाँ आने के लिए, क्योंकि आज के दिन में I can understand वक्त देना बहुत मुश्किल है। It is the most toughest and essential valuable thing which we have in our human life. उस वक्त से पेरेंट्स यहाँ आए, आप बच्चों को लेके आए, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आगे, I extend my heartiest gratitude to our honorable Vice Chancellor Sir, Professor Dr. Raman Kumar Jha,
for the inevitable support, motivation, and guidance. I also extend my gratitude to our respected Registrar Sir, Professor Dr. J.V. Patnaik Sir, for the support. I extend my thanks to our respected Dean Academics Sir, Professor Arvind Kumar Sir, who introduced such beautifully, gave a mirror image to you all of the various schools, the university academics, rules and regulations. I also extend my thanks to the assistant deans from Dr. Rajkumar Sir from IMS and Dr. Arnold Sir sitting here from IMS. I thank all the respected head of the departments, the faculty members, the non-teaching staff members for the support given. How can I miss the entire admission and marketing department who hand-held you all and brought you here? So my heartfelt thanks for the marketing and admission department team. Special thanks to the IT team. Need to mention Amarjeet's name. From admin team, Vineet ji. And yes, our faculty in charge from our admissions department, Dr. Rishi Kumar Srivastava sir, for the support extended. I request our Vice Chancellor sir present a memento to the team of CIPET, which can be given to Heather sir, so that he can do the CIPET team. I thank CIPET team for giving the helping hand and extending the support on the performance journey to give a student investment program for the leading students in the campus. Thank you. And the convening team of the orientation program, Dr. Chanchana ma'am, Mr. Divya Utkarsh sir, Mr. Amit Chaturvedi sir, Mr. Harkiran Isbal sir, Ms. Neha Kumari ma'am, Ms. Elisha Akram ma'am, and lastly, our student volunteers who extended their support and without which this program would never have been possible. Before winding up, there is a very famous quote by Swami Vivekananda, which we all need to imbibe in our life. उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो. Arise, awake, and stop not till the goal is achieved. Students, it might sound a very small quote, but it's a very meaningful quotation which you need to follow. आप सभी बच्चे आज के बाद अपने घर के घोंसले से बाहर निकल रहे हैं. The world is in front of you. After 3 years or 5 years, you won't have the support of your parents or your faculty members standing here. So it's the time now to stand on your own toes. So follow discipline and move ahead. We are there as a team for you. Thank you and best wishes. I request you all to kindly proceed for the document verification at lunch, as I just said the announcement. Thank you.